Hello students, how are you? Have a good day. Today we are going to start the next topic of our rotational dynamic chapter, that is conical pendulum. Today we will discuss the whole values of conical pendulum like its angular velocity, its time period, its length, its height, then its angle and then its linear velocity. All the topic today we are going to study in today's our lesson, that is conical pendulum. Now before starting the different derivation of this conical pendulum, let us discuss what is actually the conical pendulum is. Now conical pendulum. Now pendulum is just our imagination is there is a string and there is a bob. This is called as bob and this bob is attached to a string and this string it is attached to a rigid support or suspended to a rigid support, this string, and it is moving to and fro. Then it is called as pendulum. This is the concept of simple pendulum. Now today here we are going to discuss about conical pendulum. Means when the pendulum is revolved, then it forms a shape of cone. Then it is called as conical pendulum. Now for that the concept is same. That is, you have to consider an inextensible string to which a heavy bob mass, that is, this is called as bob having heavy mass. Then such bob you have to assume here. Okay, this bob is attached to an inextensible string and if it revolves in a horizontal circle like this. Okay, this is revolving in a horizontal circle. Suppose this is a pen and this tip is, imagine that this cap is nothing but our bob and this is an inextensible string. When you attach it and if it is this is rigid support, my hand is a rigid support and this is an inextensible string, this is a bob having heavy mass, then it is moving in a horizontal circle like this. Understand whether you are getting it? It is revolving in a horizontal circle. इस तरह से जब मूव होता है तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया और अगर ये इस तरह से मूव होता है तो इसे कहते हैं वर्टिकल मोशन और वर्टिकल सर्कल. ओके, तो अभी यहाँ जो कॉनिकल पेंडुलम है, ये कॉनिकल पेंडुलम आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से मूव जब होता है, तो जब ये इस तरह से मूव होता है, लुक एट हियर, इट इज फॉर्म लाइक अ कोन. ओके, अगर आप यहाँ तक पूरे पहुंचते हो तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये सेंटर है. ओके, तो ये एक कोन का फॉर्म पूरा शेप तैयार करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉनिकल पेंडुलम. ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है. तो ये यहाँ पे एक कोन के शेप में फॉर्म करेगा अलोंग द स्ट्रिंग, देन इट इज कॉल्ड एज कॉनिकल पेंडुलम. ओके, देन अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट इट. A inextensible string to which a heavy mass bob is attached and this whole is attached to a rigid support, and if it is revolving in a horizontal circle then the string perform conical shape. Okay, then it is called as conical pendulum. This is the basic concept of conical pendulum. Okay, now we are going to discuss or we are going to find the angular velocity of conical pendulum, that is omega. First we will define this omega, find this omega, then we will discuss about time period and linear velocity. So for that let us consider this heavy bob mass. Let us consider its mass is suppose small m. Okay, then height of a string is h, length of a string is L. Okay, take it capital L. Now you are getting confused that height is same as that of length. मैंने अगर कहा है कि ये लेंथ है और ये हाइट है तो डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि ये बॉब जब टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो यहाँ पे भी जाएगा, ये बॉब यहाँ पे भी जाएगा. एंड आई एम सेइंग ड्यूरिंग द assumption that it is a inextensible string.
inextensible string means length remain constant. Okay, there is no change. Then what is the difference between this H and L? Look at here. Roughly I am going to explain you. This is a string and this is a bob. Okay, then H is from here to here, just a string. Length of string is H. But what about L? For L, you have to consider the length from the center of the body. Means this R. Suppose this bob having radius R, then this R radius is R, then this H plus R is equal to L. That is, you have to say H plus R is equal to L. This is the difference between H and L. H is the only height of extensible string, but L is the length of extensible string plus radius of bob. That is H plus R is equal to L. This is the difference here, that is H and L. Okay, and the angle made with the string is suppose theta. Okay, then how much assumptions you are going to take? M is the mass of the bob, H is the height of inextensible string, L is the length of a pendulum. पेंडुलम की लेंथ है जिसमें H प्लस R दोनों ऐड होंगे तब वो होगा L, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एंड थीटा इज द एंगल मेड ड्यूरिंग द motion of conical pendulum with the string. Okay, this is about conical pendulum. Now let us discuss about the angular velocity of conical pendulum. For that, let us consider here. Initially हम ऐसा imagine करेंगे कि ये bob यहाँ पे है. Okay, now when the bob is here, okay, there is a tension in the string. When the body is here, this conical pendulum or this simple pendulum is in rest position. Okay, now I am applying the force. अब मैं जब फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होने वाला है. मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड. ओके, अब जब मैंने ये बॉब को यहाँ से पकड़ा है और ये बॉब को यहाँ से लेके यहाँ तक आई हूँ और यहाँ मैंने उसे छोड़ दिया है. When I remove my external force on this bob, it return to this position and it moves in such manner. Okay, इस तरह से ये मूव होगा. अगर ये कोनिकल पेंडुलम है तो ये पूरा राउंड में मूव होगा. अब इनिशियली मैंने सिर्फ इतना ही किया है इसे कि मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक लाया है. अब जब ये कोनिकल पेंडुलम है तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल डिराइव करेगा. ओके, अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल डिराइव करता है तो सपोज ये जो पार्ट है दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. सो लेट अस कंसीडर R is the radius of this horizontal circle. Okay, now जब ये बॉडी यहाँ पहुंची है there is a tension in the string. स्ट्रिंग में टेंशन तैयार होगा, वो होगा T. ओके, और ये बॉब पर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा mg. डाउनवर्ड फोर्स क्योंकि इट इज सस्पेंडेड इन द एयर. व्हेन इट इज हैंग इन द एयर द अर्थ गिव्स इट्स अट्रैक्टिव प्रोसेस एंड ड्यू टू विच mg एक डाउनवर्ड फोर्स जो उसे अर्थ अपने पास खींचने के लिए ट्राई करेंगी तो वो होगा mg. अब ये जो टेंशन T है मैं इस टेंशन T को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने जा रही हूँ. देखिए ये T है, इसे मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगी. तो जब मैं इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज T cos थीटा एंड दिस वन इज T sin थीटा. ओके, नाउ T cos थीटा एंड T sin थीटा ये T कंपोनेंट को रिजॉल्व करने के बाद एक को हम दो में रिजॉल्व करेंगे. जैसा ये एक है इसे हम दो में रिजॉल्व करेंगे तो ये वाली फिंगर T sin थीटा एंड दिस थंब गोस cos थीटा. देन T cos थीटा और T sin थीटा ये T को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है. अब mg जो है और T cos थीटा इफ यू आर लुकिंग हियर दे आर डायरेक्टेड अपोजिटली. सेम है
लेकिन सिर्फ इनकी डायरेक्शन कैसे रहेंगी, अपोजिट रहेंगी। इसलिए यू कैन अज्यूम टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यू कैन अज्यूम इट, क्योंकि ये जब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ही ये स्ट्रिंग स्टेबल रहेगा, अदरवाइज द स्ट्रिंग विल ब्रेक। ये स्ट्रिंग ब्रेक होगा अगर टी कॉस थीटा और एम जी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाए तो। इसलिए हमें अज्यूम करना है कि ये इनएक्सटेंसिबल एंड अनब्रेकेबल स्ट्रिंग है, सो दैट टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट? दिस इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होते वक्त हमें लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगता है हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब ये नेसेसरी सीपीएफ इसे प्रोवाइड कौन करेगा? तो ये जो टी साइन थीटा है, दिस प्रोवाइड इट नेसेसरी सीपीएफ। दैट इज यू कैन से टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब सीपीएफ के दो फॉर्मूले हैं, मे बी एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाय आर। अब मुझे यहाँ ओमेगा निकालना है, इसलिए मैं ओमेगा लूंगी यहाँ। जब मुझे लीनियर वेलोसिटी डिराइव करनी होगी उस वक्त मैं क्या लूंगी? उस वक्त मैं लूंगी एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, सो हियर यू आर गोइंग टू अज्यूम एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट ओमेगा। ओके, सो divide equation 2 by 1. Okay, then t sin theta upon t cos theta is equal to mr omega square upon mg. Okay, this tt get cancel, get cancel. Sin theta upon cos theta become tan theta is equal to r omega square upon g. And therefore omega square is equal to g tan theta upon r, or you can say omega is equal to square root of g tan theta upon r. This is the value of angular velocity of a conical pendulum. अब ये conical pendulum जो है ये हम L के टर्म में भी निकाल सकते हैं, आर के टर्म में भी निकाल सकते हैं और एच के टर्म में भी निकाल सकते हैं। जब एमसीक्यू आते हैं या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दोगे, नीट जेई जो भी मल्टीपल एग्जाम्स आप अपीयर करने वाले हो, उसके बाद आपको ओमेगा निकालने के लिए आर नहीं दिया है, एल दिया है या एच दिया है या सिर्फ थीटा दिया है, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आर दिया है तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, आर और थीटा दिया है और आपको ओमेगा निकालना है। इफ आर नहीं दिया, एल दिया है, और तो फिर आप फॉर्मूला कैसे रिक्रिएट करेंगे? तो देखिए हियर दिस इज द थीटा। ओके, कंसीडर हियर साइन थीटा। ओके, देन फ्रॉम दिस सपोज दिस इज एक्स, दिस इज ओ एंड दिस इज पी। ओके, इन ट्राइंगल ओ पी एक्स, ओ पी एक्स, ये अगर हम ट्राइंगल लेते हैं तो इस ट्राइंगल में देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, देन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस मींस r अपॉन l, therefore r is equal to l sin theta. Okay, now put this value of r here, then equation become g tan theta upon l sin theta. तो आपको थीटा और एल दिया है तो भी आप ओमेगा निकाल सकते हैं। अब आपको आर और एल नहीं दिया लेकिन सिर्फ एच दिया है तो भी हम निकाल सकेंगे। देखिए अब यहाँ जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो हो गया ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी tan थीटा अपॉन एल साइन थीटा। अब आप tan थीटा को अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लेते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन साइन गेट कैंसल, यू विल गेट जी अपॉन एल कॉस थीटा। क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया। ओके, उसके बाद अगर मैं यही फिर से ट्राइंगल लेती हूँ और ये ट्राइंगल से अगर मैं कॉस थीटा निकालती हूँ तो कॉस थीटा कितना होगा? एच अपॉन
Okay, therefore you can say h is equal to l cos theta. Okay, अब ये l cos theta यानी क्या हो गया h, so omega become square root of g by h. omega is equal to square root of g by h. तो ये भी एक फॉर्मूला आपके पास तैयार हुआ, यानी आपको जो क्वेश्चन में आंसर निकालना है और उसके लिए जो गिवन कंडीशन है उस हिसाब से आप ये फॉर्मूले बना सकते हैं. इफ r and theta is given, then you have to use this formula. If l and theta is given, then you have to use this formula. If only h is given, then you have to use this formula, and you should calculate omega in any way. In any way, जो भी दिया है आपको ओमेगा निकालना ही है और वो एमसीक्यू, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है एग्जाम में. ओके, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम. फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ. देखिए आप, हमने एक कॉनिकल पेंडुलम लिया है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व हो रहा है. ये जब रिवॉल्व हो रहा है तो इनिशियली ये यहाँ पे आया है. जब ये बॉब यहाँ है तो स्ट्रिंग में टेंशन तैयार होगा T. ओके, और ये इस पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा mg. अब ये जो T है इसे मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, T cos थीटा, T sin थीटा. T cos थीटा mg को अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रहने की वजह से वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, अदरवाइज ये स्ट्रिंग ब्रेक होगा. तो T cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया mg. और जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो हमें पता है कि whenever the body is performing circular motion, the necessary force is centripetal force. अब ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा इसे, तो T sin थीटा ये जो है ये इसे प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर. अब मुझे ओमेगा निकालना है इसलिए मैं 2/1 डिवाइड करूंगी. 2/1 जब मैं डिवाइड करती हूँ तो टी गेट कैंसल, साइन बाय कॉस बिकम tan, mm गेट कैंसल, r ओमेगा स्क्वायर बाय g. बाय अरेंजिंग इट वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g tan थीटा बाय r. For multiple choice questions or for various competitive exam, if r is not given to you, then you can use calculate omega by using L also and by using H also. For that, consider this triangle OPX, and this OPX cos theta is equal to sin theta is equal to, and by arranging it you will get the various formula of omega. This is the angular velocity of conical pendulum. Okay, now we will discuss the time period of conical pendulum. So let us see the time period of conical pendulum. If you like my teaching, if you like my video, please like my video, please subscribe my channel, please give comments on my video. If you have any query, you can comment in the video, okay, in the comment box. So let us now calculate the time period of conical pendulum. Now already we know that T is equal to 2 pi upon omega. This is the formula. T is equal to 2 pi by omega. अब हमने ओमेगा के यहाँ वेरियस फॉर्मूले निकाले थे. पहला ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g tan थीटा अपॉन r. ओके, g tan थीटा अपॉन r. उसके बाद क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा. ओके, जस्ट अ मिनट. Now we will discuss about time period of conical pendulum. Now we know that T is equal to 2 pi upon omega. Okay, ये कॉमन फॉर्मूला है, ये हम सबको पता है. Okay, अब T is equal to 2 pi by omega. अभी हमने ओमेगा कैलकुलेट किया है. What is omega? Omega is equal to square root of g tan theta upon r. Okay, or you can assume omega is equal to square root of g upon l cos theta, or omega is equal to square root of g upon h. Okay, now put one by one any formula, then you will get the different value of
इसे हम रीअरेंज करेंगे, देन t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r अपॉन g tan थीटा। जो यहाँ डिवीजन में था वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आया है, इसलिए रिवर्स हुआ है। तो ये एक फॉर्मूला तैयार हुआ। मैंने टाइम पीरियड अगर r और थीटा दिया है तो आप निकाल सकेंगे। सपोज अगेन आपको r नहीं दिया है, l दिया है, तो भी आप t निकाल सकेंगे। अगेन बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई एंड अपॉन क्या आएगा, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा। बाय रीअरेंजिंग इट, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g। दिस इज द another formula for time period of conical pendulum. Okay, now by putting omega is equal to g by h, then t is equal to 2 pi square root of g by h, therefore it is equal to 2 pi square root of h upon g। means by any one term, any one physical quantity you have given in the numerical, then you can calculate omega also and you can calculate time period also when you have given h or l or r। by using various formula you can calculate omega and you can calculate time period of conical pendulum। okay, now we will discuss about linear velocity of conical pendulum। Now we will discuss about linear velocity, that is v of conical pendulum। अब फिर से हमें वो डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, आपको वो डायग्राम अच्छे से समझ चुकी थी। तो उसमें से हमें फिर सिर्फ इतना ही करना है कि जब हम v ले रहे हैं तो ये v लेते वक्त हमें जो पहली कंडीशन थी t cos थीटा और t sin थीटा, वो कंडीशन हमें यहाँ पे फिर से यूज करना है। दैट इज वी नो दैट t cos theta is equal to mg, this is our equation number 1 from the figure, and t sin theta is equal to, मैंने आपको तब भी बताया था कि जब मुझे ओमेगा निकालना था तो मैंने यहाँ m r ओमेगा स्क्वायर लिया। now here I want to calculate v, so I am taking m v square by r, that is necessary CPF provide to perform a horizontal circular motion। अब मुझे v निकालना है। आगे डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, सेम प्रोसेस यू हैव टू कंसीडर हियर, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू mv square by r upon mg। अगेन हियर mm get cancel, tt get cancel, then tan of theta is equal to v square upon rg, and therefore v square is equal to rg tan of theta, the similar formula like banking of road, and therefore v is equal to square root of rg tan theta। okay, this is the linear velocity of conical pendulum। ये हुई कॉनिकल पेंडुलम की लीनियर वेलोसिटी। अगर आप बोर्ड के टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको सिर्फ ओमेगा और टी निकालना है, लेकिन मैं आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट दे रही हूँ कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको अपीयर करना है या अदर कोई एग्जाम आपको देनी है तो आपको ये भी एक्स्ट्रा उसमें पता होना चाहिए। क्लियर सिलेबस, द फॉर्मूला फॉर v इज नॉट डिराइव्ड फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, बट फॉर अदर स्टेट यू कैन यूज दिस, you can calculate v also। okay, so keep it in mind and keep it in your notes also, that is v is equal to square root of rg tan theta। अब यहाँ पे भी आप r को रिप्लेस करके l cos थीटा या h यहाँ आप यूज कर सकते हैं, जैसा हमने ओमेगा और t के लिए किया। ये फॉर्मूले आप खुद ट्राई करके डिराइव करके देखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं या मुझे कांटेक्ट करके भी आप बोल सकते हैं। ओके, देन यू हैव टू कैलकुलेट हियर v in terms of l and in terms of h। this is about conical pendulum, its angular velocity, its time period and its linear velocity।
This is the complete topic of conical pendulum. Now